لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ آج ایک مرتبہ پھر اونا کی سرزمین پر ایک اللہ کے برگزیدہ بندے کے عرس کی محفل میں سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار غوث العظم دستگیر کے شہزادے کے نام پر سجی ہوئی محفل میں سبحان اللہ میں اور آپ ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ میری اور آپ سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت سید عبدالستار باپو قادری الجیلانی رحمت اللہ علیہ کے مرقد پر انور پر مزید رحمت و نور کی برسات فرمائیں اور ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے بڑے بھائی رفیق میاں باپو کے درجات کو بھی اور اس پورے خاندان کے درجات کو اللہ تعالی بلند فرمائے اور خاندان قادریہ کی خیرات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ قادری خاندان کی خصوصیت یہ ہے سبحان اللہ کہ غوث پاک کی اصل بھی ولایت سے پر ہے واہ 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 اور غوث پاک کی نسل بھی ولایت سے ہائے پر ہے۔ ہائے حق اس کی وجہ یہ ہے کہ باپ کے گھر میں جو دولت ہوتی ہے واہ 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 وہ اولاد کو ورثے میں ملتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو غوث پاک جب در والوں کو ولی بنا دیتے ہیں واہ 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 تو غوث پاک کے گھر کا تو بچہ بچہ ولی ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ اس لیے کہ جس کے گھر سے ولایت بڑھتی ہو، بے شک حق جس کے گھر سے ولایت تقسیم ہوتی ہو، بے شک اور بات اتنی ہے کہ ممکن ہے کہ کہیں اچھوں کو ولایت ملتی ہو، کہیں اچھوں کو ولایت ملتی ہو۔ میرا غوث تو وہ ہے جو چوروں کو بھی مقام قطبیت عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ اور اسی خاندان ذی وقار کی خیرات لینے کے لیے ہم سب حاضر ہیں، تمام اہل منبر بھی اور آپ سب بھی۔ اللہ ہمیں خاندان قادریہ کی خیرات دنیا میں بھی عطا فرمائے، قبر میں بھی عطا فرمائے اور میدان محشر میں بھی عطا فرمائے، اور اللہ ہمارا حشر و نشر ہم سب کے آقا بڑے پیر دستگیر سرکار غوث العظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے غلاموں میں اور مریدوں میں فرمائے۔ یہ خصوصیت اللہ نے جو حضور غوث پاک کو عطا کی ہے، کسی غیر تابعی کو یہ خصوصیت عطا نہیں ہوئی کہ وہ تابعی سے افضل ہو جائے۔ ہمارے علماء سادات اہل علم موجود ہیں، کوئی غیر تابعی کسی تابعی سے افضل نہیں ہو سکتا، لیکن یہ غوث پاک کی خصوصیت ہے کہ وہ صرف بعض تابعی سے نہیں بلکہ ہزاروں تابعی سے افضل ہے۔ میرے امام نے اس کو یوں بیان کیا ہے، ہزاروں تابعی سے تو فضوتر، ایک دو نہیں بلکہ ہزاروں تابعی سے تو فروتر، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث، اور جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث۔ دیکھیے میری بات پھر بطور دلیل اس کی میں نے امام کا یہ شعر پیش کر دیا۔ میں نے کہا کہ غوث پاک کے گھر کا بچہ ولی ہے، تو ممکن ہے کسی کے ذہن و دماغ کے اندر کوئی وسوسہ آ گیا ہوگا کہ بچہ غوث پاک کے گھر کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو 108 علوم و فنون میں مہارت رکھنے والا مجدد کہہ رہا ہے، جو تیرا طفل ہے، طفل کہتے ہی بچے کو ہے، جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، صرف ولی نہیں، ولی کامل، جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، تو فیلی کا لقب واصل ہے یا غوث۔
तुफैली का लक़ब वासिल है या गौस, और रजा का खात्मा बिलखैर होगा। तेरी रहमत अगर शामिल है या गौस, तेरी रहमत अगर शामिल है या गौस। या रसूल अल्लाह। अबू बकर आला हजरत आला हजरत। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी खानदान के चश्मो चराग सैयदी सरकार अब्दुल सत्तार बापू के दूसरे उर्स से सरापा कुद्स में हाजिर हैं। गुज़िश्ता साल भी फ़कीर की हाज़िरी हुई थी और इस साल भी ये हज़रत पीर सैयद ग़ुलाम मोहम्मद बापू क़ादरी अल जिलानी की मोहब्बतें हैं कि उन्होंने फिर जो है वो मुझे मदऊ किया और हमारे इंतहाई करम फरमा हज़रत पीर गुलजार बापू मुद्दज़िल्लहुल आली के तवस्सुत से उन्होंने कहा कि हाजिर होना है। हालांकि पिछले ही साल जब मैं रुखसत हो रहा था तो उन्होंने मुझे इस साल की दावत दे दी थी, लेकिन मेरे जहन में बात नहीं थी, लेकिन बहरहाल याद दिलाया गया और फ़कीर हाजिर है। और उर्स का जो मकसद है, उर्स का मकसद सैर व तफरी नहीं, इसलिए कि उर्स की खुसूसियत ये है कि उर्स खानकाह में होता है और खानकाही लोगों का होता है। ये ख़ास बात है। उर्स अहले खानकाह का होता है और खानकाहों में होता है। और अगर कहीं और उर्स होता है खानकाही लोगों का ही होता है, अगरचे वो खानकाह ना हो, तो उर्स का मकसद सैर व तफरी नहीं है। उर्स का मकसद बाजे तमाशे नहीं है। उर्स का मकसद मेले ठेले नहीं है। उर्स का मकसद हूल हपाड़ नहीं है। उर्स का मकसद मर्द और औरतों का इख्तिलात नहीं है। उर्स का मकसद अपनी तबीयत के मुताबिक गुनाहों के अड्डों को आबाद करना नहीं है, बल्कि उर्स का मकसद एहतिसाब है कि इंसान जब किसी खानकाह में किसी साहिब उर्स की महफिल में आए तो वो वहां बैठकर थोड़ी देर के लिए गौर करे कि हम में रहने वाला इंसान जो खुदा से वासिल हो गया तो आखिर उसकी वजह क्या है। हम में उठने बैठने वाला इंसान अल्लाह तबारक व तआला के कुर्बे खास की मंजिलें तय कर गया तो उसकी वजह क्या है। इसलिए कि इंसान अगर घट जाए तो मुश्ते खाक बन जाता है, अगर इंसान घट जाए तो जानवरों से बदतर बन जाता है। इंसान अगर घट जाए तो फिर वो मिट्टी के तोदे के सिवा कुछ नहीं रहता। इंसान अगर घट जाए तो नापाक कतरे और मिट्टी के कीचड़ के सिवा उसकी कोई अहमियत नहीं रहती। और अगर इंसान बढ़ जाए, खुदा को राजी कर ले, तो फिर फरिश्ते उसके आगे झुके हुए नजर आते हैं और वो फरिश्तों से अफजल तरीन हो जाता है। उसका दिल खुदा का अर्श बन जाता है, बल्कि वो जमीन पे बैठकर लौहे महफूज का मुशाहिदा करता है। उसके हाथ उठते हैं तो तकदीरें बदल जाती है। उसका हाथ मसीहा का काम करता है, दवाएं जवाब दे जाती है। वहां अल्लाह के उस बरगज़ीदा बंदे की दुआ काम आती है। ला वलद को खुदा औलाद वाला बना देता है। आखिर वो इंसान ही तो है। उसकी दो आंखें हैं, अपनी भी दो आंखें हैं, उसके दो हाथ है, अपने भी दो हाथ है, उसके दो पैर है, अपने भी दो पैर है। वली में और हम में जिस्म के एतबार से कोई फर्क नहीं होता। फिर क्या वजह है कि वली जिसको देख लेता है उसकी काया पलट जाती है। क्या बात है? क्या ऊना में कब्रिस्तान की कमी है या कब्रों की कमी है? आप अपने दादा के नाम पर ऐसी महफिल क्यों नहीं सजाते? अब्दुल सत्तार बाबा के नाम पे ऐसी महफिल क्यों सजती है? वजह यह है जिनके दिल खुदा से वासिल हो जाते हैं, जो खुदा का कुर्ब पाते हैं। और बात यह है कि आपके दादा के नाम पे इतने लोगों को आप जमा भी नहीं कर सकते, इसलिए कि लोगों का जमा होना ये किसी की रूहानी कशिश की बुनियाद पर होता है, ये किसी के खींचने की बुनियाद पर होता है, वरना महफिलें तो और भी सजती है। और फिर चले अगर आप किसी को जमा भी कर लें तो फिर ये रंग कहां से लाएंगे, ये रूप कहां से लाएंगे, ये हुस्न कहां से लाएंगे, ये इत्मीनान कल्बी कहां से लाएंगे, ये सुकून की दौलत कहां से लाएंगे। तो वली भी इंसान होता है, हम भी इंसान है। फर्क क्या होता है?
किसी वली के मजार पे बैठकर सोचो, हमें का इंसान इतना बुलंदी कैसे पा गया कि मलाइका भी जिसे रश्क की नजर से देख रहे हैं, यहां मलाइका रश्क की नजर से देख रहे हैं। और क़यामत के दिन हदीस पाक में आता है कि शोहदा और अंबिया उन बंदों को निगाहे रश्क से देखेंगे। हालांकि अंबिया के मर्तबे बहुत बुलंद हैं, लेकिन यहां औलिया की शान बयान करते हुए अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शोहदा और अंबिया उनको रश्क की नजर से देखेंगे। वो नूर के मिंबर पर बैठे होंगे और उनके चेहरों पर कोई खौफ नहीं होगा, उनको कोई बेकरारी नहीं होगी, उनको कोई बेचैनी नहीं होगी। कहा जाएगा ये कौन है? कहा जाएगा ना ये शहीद हैं ना ये नबी हैं, बल्कि ये वो लोग हैं जब सब सो जाते थे। ये वो लोग हैं जब सब सो जाते थे तो ये अपने पहलुओं को बिस्तर से अलग करके मुसल्लों पर खड़े होते थे। सुभान अल्लाह। जब लोग नींद के मजे लेते थे और खर्राटे लेते थे, उस वक्त ये कुरान मुकद्दस की तिलावत करते थे। जब सब लोग गुनाहों के दलदल में रात की तारीकियों का फायदा उठाते हुए गुनाहों में डूब जाते थे, उस वक्त ये अपने अल्लाह को मनाने के लिए अपनी आंखों की आंसू रब की बारगाह में बतौर सौगात पेश करते थे। इन तीन सिफतों की वजह से अल्लाह ने इनको ये मकाम अता फरमाया है जिनको हम अपनी जबान में वली कहते हैं। सुभान अल्लाह। तो वलियों के यहाँ बैठकर एहतिसाब करो कि इनको ये मंजिलें कैसे मिली। कमेंट शेयर जरूर करिए।